Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम बिल्कुल ठीक ठाक लवली मॉर्निंग हियर इन जिनीवा आई एम इन जिनीवा टुडे क्या कर रही हैं आप जिनीवा में भाई? एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्चुअली चीज होती है यहाँ सो एवरी ईयर द चिल्ड्रन व्हेन दे बिकम 12 और समथिंग इन स्कूल उनका एक दिन होता है which was पहले it was called the gender day now it is also called the future day जिसमें they have to spend one day in the office in any workplace where ओह. they get to know how things are working. Now it was called gender day before because the boys had to go and work in a place that was traditionally women and the girls had to go and work in a space, so it could be a fireman's job, it could be anything like that. So I had to bring my son here today, so he had to, because the person and you can't leave them because they're just 12 or 13, so isliye someone, so I had to come here for किस ऑफिस में? what is the office, what is the business, what is the thing that he's doing? तो एक्चुअली इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड समथिंग. पहले मैंने सोचा था मैं लोकल बेकरी में जाऊंगी, वहां वो जो लेडीज काम कर रही होती हैं पीछे, लेकिन फिर आई फाउंड समवन हु एक्चुअली रन्स, शी सुपरवाइजेस इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम्स, ऑल लैंग्वेज एग्जाम्स इन डिफरेंट सिटीज. तो शी इज डूइंग इट एंड वहां प्रिडोमिनेंटली वुमेन ही होती हैं. सो व्हाट दे हैव, मैंने पूछा तुम लोगों ने किया क्या, बिकॉज आई एम नॉट देयर फॉर 4 hours. They have to make sure कि the examinees come in, वो अपने सारे pockets empty करें, they should not leave anything outside, then they make sure they only pick up their things and supervise them जब exam, because they're all digital exams, right? Pencil paper पे नहीं होते, तो काफी detailed. then वो invigilator कल नहीं था, so they both had to stand and there were two of them together doing it, अलग अलग दरवाजों पे 19 people. It was very interesting. Okay. So yeah. So So good. So that's आप what आज वापस जा रही हैं आप? आज मैं शाम को वापस जाऊंगी, थोड़ी सी जरा मैं जिनीवा की रंगीनियां देख लूं. इट्स अ ब्यूटीफुल डे, इट्स नॉट सपोज टू रेन. एंड आपको पता है यहाँ यूनाइटेड नेशंस भी है. सो आई वाज जस्ट चेकिंग कि अगर मैं टूर कर लूं, वो जो राबिया एक कुर्सी है बड़ी सी, एंड इट हैज 4 उसके जो लेग्स होते हैं, तो एक लेग जो है वो टूटा हुआ है इसके ऊपर. मे बी यू सीन इट, आई डोंट नो इफ यू बीन एंड सीन इट. तो तो आप जाएंगे वो? वो मेरी गलती हो गई कि मैंने टूर नहीं प्लान किया पहले से, वरना यूनाइटेड नेशंस बिल्डिंग का अंदर से यू कैन एक्चुअली हैव अ टूर इनसाइड. But You should plan it. next आप वहाँ time रहती हैं, you should take advantage of it and you should plan it. I should. And I think a lot of people who have been to Switzerland और seen तस्वीरें, एक बड़ी iconic तस्वीर जिनीवा की होती है जिसमें वो बड़ी सी घड़ी है राबिया, maybe you've seen it too, जो फूलों के दरमियान है. Yeah. It's you have the हाँ. तो वो जरूर, उसकी मैंने यू के फेरिस व्हील से जाके लेट नाइट कल तस्वीर खींच ली थी. So that was there. So yes, चलिए, lots of आपने एक lovely बॉक्स को things. चेक कर दिया है. एक बॉक्स को एक टिक कर दिया आपने. हाँ, ठीक है. Yeah, अच्छा, you have some comments that we can talk about. I have comments I have sent to you. Actually, I wanted to apologize क्योंकि क्या होता है कि जब आप स्क्रीनशॉट लेते हैं ना YouTube से, तो बहुत सारे कमेंट्स पूरे नहीं आते अगर लंबे होते हैं, तो मैंने हिस्से लिए बीच बीच के. सो आई कैन रीड वन, यू कैन रीड वन. तिनके की सहारा पे काफी कमेंट्स आ रहे हैं एक्चुअली, बिकॉज आई थिंक एक तो राबिया जो हमाद की कहानी थी ना, इट हैज रियली मूव्ड पीपल. क्योंकि in a very short time he had really grasped us, and we loved him and blah blah blah, everyone was, he was very endearing. तो लेकिन सबको जंजीबील से शिकायत है. So I'm just but this one says, I'm just impressed that they are moving the story on very quickly and I hope this continues. I have to say the death was badly executed. We should have seen bullets flying around, lots of people reacting in different directions, and maybe more people getting superficial wounds. I understand they wanted for us to see Hamad on the ground at the same time as Vase, which was fine, but the action needed more work. Then she said Samiji's performance was great. However, deaths and stories are not really about emotions. They're about propelling the story forward. I expect the story to get more psychological. So this is a little bit of the point you had said. कि वो बुलेट But I कैसे also लगी. feel कि उन्होंने ये सब इसलिए किया था because they wanted to surprise the audiences. लेकिन I think हमें थोड़ा सा पहले से ही अंदाजा हो रहा था. मुझे ये नहीं पता कि प्रोमो में दिखाया या नहीं दिखाया, लेकिन हमें थोड़ा सा पहले से अंदाजा था कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है. तो वो जो सरप्राइज एलिमेंट था शायद वो उस तरीके से इम्पैक्टफुल नहीं हो सका. बट द रीजन दे डिडंट शो ऑल ऑफ दिस वाज, एंड वो पूरा जो दिखाया है कि वो सोनिया हुसैन का कैरेक्टर इधर से पूरा आके उसको देखता है, बिकॉज it was meant to be something that we were not expecting and it was meant to shock us, but it didn't have that impact, not at least on me. मुझे पहले ही पता था इसको कुछ हो जाए. अब I don't know कि मैंने प्रोमो में देखा था या कहाँ देखा था, but I knew this is going to happen.
प्रोमो में नहीं था as far as I remember. I was hoping कि वो आई थिंक जिंदा मैंने रह जाए. ओएसटी में कहीं कुछ देखा था जिससे मुझे शक हो गया था कि हमाद को वी विल लूज, यू नो, सो मे बी इसलिए. सो आई डोंट नो, आप लोग बताइए, क्या यू गाइस वर सरप्राइज्ड और शॉक्ड टू सी हमाद exiting the drama? Okay, Jihan's reviews has posted Rabia Zanjabil का कोई इशू है, like seriously fraud में तलाल आइडियल हस्बैंड मर जाता है. चीख में मन्नत का हस्बैंड आइडियल था, मार दिया. बला में समीना पीरजादा आइडियल मदर थी, उनको मार दिया. पीकेएस में मुंशी साहब गुड फादर थे, मार दिया. और अब हमाद मार दिया. लाइक व्हाट द. पीएस फितूर में कोई आइडियल नहीं था कैरेक्टर, इसमें कोई नहीं मरा. सही कह रही हूँ ना. Something to think. So I think I hope Sanjibili is listening to it and maybe she can Yeah. answer. अच्छा खैर, मेरे पास एक बड़ा interesting comment है जो आपने भेजा. I was watching the review of Veshi with intent as both of you were discussing the same points that I was thinking, but then I burst out laughing. That's when Rabia said, "Veshi हमारा देसी Hulk." तो चलिए, I'm glad we made you laugh. So that's all. Yeah. I would love agar if they showed real world issues such as romance between an older woman and a younger guy, or the stress that the youngest sister feels that being an unwanted girl child, what it should not become is conniving in-laws, women sobbing at their misery, and countless cups of tea to address all issues. अभी तक तो लग रहा है कि वो इन टॉपिक से बात करेंगे, although as I said last time also, and I'm saying it this time also, there is something missing in the execution which makes it slightly difficult to watch going forward now. I'm feeling it. मुझे जो पहली किस्त में मजा आया था वो मुझे बाकी दो किस्तों में नहीं मजा आ रहा, और मुझे थोड़ा सा बर्डन लग रहा है उसको देखना. एंड मुझे नहीं पता कि क्यों, बट एंडलेस कप ऑफ टी तो नहीं है, खाना वो लोग हर वक्त खाते रहते हैं. डाइनिंग टेबल सीन्स बहुत ज्यादा है इनके वैसे, बाय द वे. और बेचारी चांदनी काम ही करती रहती है, वो चाय के कप्स, ढेरों चाय के कप्स बना बना के सबको दे रही होती है. आई थिंक व्हाट आई फील आई एम मिसिंग एंड आई फेल्ट इट आल्सो वाज कि एनी का जो कैरेक्टर है ना, वो उन्होंने बहुत ज्यादा पुल डाउन कर दिया. वी हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एनी, बट आई एम नॉट गेटिंग दैट बैक फ्रॉम हर. मुझे ये लग रहा है. दिस इज माई थिंग. I can't pinpoint what the problem is. Okay, let's start the review. तिनके का सहारा मैंने नहीं देखा, आप स्टार्ट कीजिए. Okay, so तिनके का सहारा में something which is very disappointing because I don't know if you got it. मैं तो I believed. Did you not think that वो जो घर था और जो मतलब जो business था and the apartment that they bought, that was on Qadar's name? Yeah, that's what they said. वो तो उसके नाम करके किया है. So it's not. Why? ओके, सो व्हाट हैपेंड वाज, अच्छा ये बड़ी रियलिस्टिक एक्चुअली बात दिखाई है कि जब कोई एक खानदान से चला जाता है तो सब यही सोचते हैं कि अच्छा पैसों का क्या होगा, जायदाद का क्या होगा, किसके नाम पे क्या चीज है. सो हियर आई वांट टू से कि जो टॉक्सिसिटी थी वो एक्चुअली ओवर रिकॉर्डेड नहीं थी. ऐसा होता है अनफॉर्चुनेटली. तो अम्मा और वो जो है उनकी भाभी जो है, वो भाभी ज्यादा चाबी दे रही थी अम्मा को कि किसके नाम पर है, किसके नाम पर है, चुप बैठी हुई है, चली जाएगी इसके सब पे. जब उससे पूछा तो इवेंचुअली वो इतनी तंग आ गई, उससे सारी फाइल्स वाइल सब निकाल के दे दी. भाभी ने चेक करी, वो सब जो है हमाद के नाम पे था. देन दे शोड अ फ्लैशबैक व्हिच वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज कदर की ये पर्सनालिटी थी कि शी सेड कि तुम्हारे ही नाम पे सब कुछ होगा. उनकी आपस में जो कॉन्वर्सेशन हुई थी. अनफॉर्चुनेटली आई वुड हैव लाइक टू सी इट ऑन कदर्स नेम बिकॉज नाउ आई एम गेटिंग अ लिटिल स्कैर्ड कि ये वो रूट लेगा कि इसके ऊपर अब टॉर्चर और ये सब होगा. देखिए, मुझे वो बात याद है कि जब वो उससे कहता है कि वो कहता है कि मैंने तुम्हारे नाम पे तुम्हारा अपार्टमेंट तो कर दिया. तो दैट्स व्हाट आई थॉट. बिकॉज वो तो परख रही होती है सारे डॉक्यूमेंट्स, इसीलिए भाभी के मैं चेक कर रही हूँ कि ये ठीक भी बोल रही थी कि नहीं बोल रही थी. और उसके ऊपर जो जुल्म शुरू हुआ है, ओके आई अंडरस्टैंड, शायद होता होगा घरों में, लेकिन बहुत ज्यादा उन्होंने उसको अच्छी तरह किया है कि वो कपड़े भी सफेद पहने और उसके कपड़े भी ले लिए. अच्छा, वन थिंग आई वांटेड टू से, मदर्स कैरेक्टर, अम्मा को बुरा भी लग रहा है लेकिन अम्मा भाभी की बातों में भी आ रही हैं और कर रही हैं ना. जब आप इस तरह एक कैरेक्टर को ग्रे दिखाना चाहें, फॉर एग्जाम्पल सबा फैसल, इट इज वेरी हार्ड फॉर द कैरेक्टर कि दे जस्ट हैव टू शो इट थ्रू हर इमोशंस. अब उनकी शक्ल, उनके एक्सप्रेशन दिखाए जा रहे हैं कि उनको बुरा भी लग रहा है, फिर वो जा के कर भी रही है उसके ऊपर जुल्म. आप 2-3 डायलॉग्स दिखा दें जो थोड़ी नरमी के हों, थोड़ी ग्रे हों टुवर्ड्स कदर, ताकि हमें वो फील हो, हमें थोड़ी सी तो सिंपैथी हो ना उस अम्मा के साथ कि वो थोड़ी कंफ्यूज्ड है, या सिंपैथी भी नहीं हो, वी कैन सी हर कंफ्यूजन और हर कॉन्शियंस कमिंग इन. यहाँ हमें उनका कॉन्शियंस बातों से नहीं आ रहा, सिर्फ बार बार उनकी शक्ल पे एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं, हाँ मुझे बुरा लग रहा है, बट शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग नाइस विद कदर.
So I think that's just a little unfair to the way the character is written. It should have been मैं shown तो better. तुम्हारी सारी बात सुनकर बड़ी डिसअपॉइंटेड हुई बिकॉज देन इट्स टर्निंग आउट टू बी अ वेरी टिपिकल ड्रामा अबाउट रोना धोना एंड जुल्म और सितम व्हिच आई वाज नॉट होपिंग फॉर। आई वाज होपिंग कि हम देखें कि कदर जिंदगी को हिम्मत के साथ कंटिन्यू करती है और हमाद उसके लिए सब चीजें सेट करके क्या है। वरना तो पूरा मकसद हमाद का यूजलेस मतलब उसके कैरेक्टर की एग्जिस्टेंस ही मुझे समझ नहीं आ रही है। सो आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड बट लेट्स सी अगर डिसअपॉइंटिंग बात बताऊं, अभी तो मैंने डिसअपॉइंटिंग बात बताई नहीं है। और भी डिसअपॉइंटिंग बात तो ये है कि वो ये सोच रहे हैं कि कदर का उस लड़की के साथ क्या कनेक्शन था जिसने हमाद को मारा है। ये ओके, तो और वो बिल्कुल क्यों स्टार नहीं प्लस ड्रामा हो रहा है भाई। गई? मैं या जंजीबील आजम से ये नहीं एक्सपेक्ट करी थी, तो बिल्कुल स्टार प्लस ड्रामा हो रहा है। सो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अभी एक थोड़ी सी सिर्फ वो डाली है, उससे ज्यादा नहीं बोला है, बट दैट वन सेंटेंसेस है, और वो आगे आके उसी के ऊपर प्ले करेंगी क्योंकि वासी तो अकेले रह गए हैं। वो वहां शायद डिवोर्स दे देंगी दुरिया इवेंचुअली, अगर अभी नहीं दिए तो। सो दैट्स रियली सैड बिकॉज I mean, there's no connection, right? Why are you showing that connection? Why can you not show something better? I don't know. So, It's yeah. disappointing. That's all I can say. ठीक है। Let's see how the execution is. लेकिन अभी तो I'm not liking this way, the way the storyline is going. We can do We वैशी। can do Vesh. अच्छा वैशी भी जो है ना, अच्छा मेरा जी, सबर का पैमाना मेरा उसके साथ लिबरेज हो रहा है। मुझे लग रहा है आई एम गोना स्टॉप रिव्यूइंग इट वेरी वेरी सून बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आ रही सोबिया चाह क्या रही है। अभी तक तो मैं कही थी यार चलो इंटरेस्टिंग है, फॉर अ चेंज एक लड़की है जो कंप्लीटली विलन या ब्लैक भी नहीं है, उसका ग्रे कैरेक्टर है, उसको दौलत की हवस है, वो एक अच्छी जिंदगी चाहती है, तो उसने अपने सारे ऑप्शंस क्लियर किए हैं। अब वो बहुत क्लियर है कि उसको आसिफ में इंटरेस्ट है, वो आसिफ को मिस भी कर रही है, लेकिन वो ताहिर को भी साथ लगाई हुई है उसकी इस बात सुन के कि वो बाहर जा रहा है। उसने उसको बिल्कुल क्लियर कट नहीं मना किया, बल्कि वो उससे पूछती है तुम रिश्ता लेकर आए थे, तुमने रिश्ते से मना क्यों कर दिया? सो आई एम सो कंफ्यूज एंड आई एम लाइक व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इज शी डूइंग ऑल ऑफ दिस? she's really confused. I think she's the one who needs to go for therapy, and she's the one who is going to drive Asif over the edge, क्योंकि अभी वो बेचारा संभाल गया था थोड़ा सा। It's हाँ very unfair because यहाँ वो आमिर से भी पूछताछ कर रही थी कि अच्छा मुझे तो नहीं पता था कि तुम दोनों भाई नहीं हो, सौतेले भाई हो, जब उसको पता था। तो यहाँ भी वो कोई गेम खेल रही है, फिर वो आमिर से दूर भी हट रही है, फिर वो okay, if they are trying to show that she's trying to be good, that Sobia is trying to be good, क्योंकि वो जाके फिर आसिफ को फोन करती है जब उसको पता चलता है कि नहीं तुम कहाँ थे, तुमने फोन नहीं किया। You're not giving the message very clearly because she's juggling 3 men at the same time, yeah and now all 3 men are eligible bachelors now, and all 3 of them. and good potentially good options for her, you know. So लेकिन ठीक है, इतना मैं उसको क्रेडिट दूंगी कि वो आमिर को अवॉइड करने की कोशिश कर रही है, वो उससे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करी है, लेकिन आमिर इतना ज्यादा आगे आ रहा है कि उसके लिए पॉसिबल नहीं है। बट जो उसने ताहिर के साथ किया दैट वाज रियली कंफ्यूजिंग बिकॉज जब ताहिर ने रिश्ते से मना किया, अपनी माँ को रोका, तो वो बहुत उस पे उसको कहना चाहिए था तुमने अच्छा किया एंड दैट्स इट। बट वो तो जाके जो उसने पूछा, दैट रियली कंफ्यूज्ड मी। एंड देन फिर वो सैड बैठी हुई है, अपनी ताईजान को क्लियरली क्यों नहीं बोलती है कि हाँ भाई मुझे आसिफ से ही शादी करनी है। वो उसने उनको भी लटकाया हुआ है, सबको लटकाया हुआ है उसने। सबको लटकाया बिकॉज पिछले एपिसोड में भी ताईजान ने सीधा पूछा था कि तुम्हें इंटरेस्ट है तो मैं बात करूं, वो भी मना कर दिया। सो शी इज अच्छा अपनी दोस्त से कह रही है कि मैंने तो कभी ताहिर के बारे में ऐसा सोचा नहीं था, ताहिर से कुछ नहीं कह रही है। सो बट माई हार्ट is going out for Tahir the most. Amir I'm finding very arrogant. And I like Atif a lot, but I feel he will not be good as a partner in the long run because of his episodes that come and go. Tahir is the best. I agree. The Sobia के कैरेक्टर में बहुत confusion है। ताहिर के लिए मुझे भी ताहिर थोड़ा सा इरिटेटिंग है, लेकिन मुझे भी उसके लिए बुरा फील होता है बिकॉज सोबिया उसको डेफिनेटली मिसलीड कर रही है। बट मैं बात करना चाह रही थी ताई जो आसिफ की अम्मी है उनके बारे में। व्हाट डू यू थिंक शी शुड डू शाजिया? अब आसिफ अगर वापस आ जाता है, वो सेटल डाउन हो जाता है, शुड शी लीव हर हस्बैंड जो वाकई उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता, और उसके बेटे को भी उसने ऑलमोस्ट साइको केस बना दिया है? व्हाट शुड शी डू? So characters are pushed to the edge sometimes. ठीक है, वो आहिस्ता 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 उनकी जर्नी होती है, एंड मुझे नहीं पता इनकी जर्नी कहाँ जाएगी। Will she be pushed to that edge because she's trying hard कि वो स्टैंड ले आतिफ के लिए, वो बार बार कह रही है कि नहीं नहीं करें, लेकिन वो फिर भी काफी सबमिसिव बीवी है। वो एक पॉइंट पे आके रुक जाती है। जितना वो कोशिश कर सकती थी कर लिया, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली सेइंग इट आउट। थोड़ा बहुत कहा भी आई थिंक उसने कि आसिफ के लिए होगा। तो आई थिंक
she can take that stand अगर वो वापस आके because that will make a big difference in Asif's life in the long run. उसके फ्यूचर में फर्क पड़ेगा लेकिन मेरे अगर मेरे बच्चे का उसको फ्यूचर लेकिन संभालना मेरे है। ध्यान में सवाल आया था, ये एक बंदा है, ठीक है, उसने आपके बेटे के साथ कंप्लीटली अच्छा नहीं किया, लेकिन उसने आपको सहारा दिया, वो आपका हस्बैंड है इतने साल से, तो आप उसकी साइड लें या आप बेटे की साइड लें, जो एक साइकोलॉजिकली जो बहुत अफेक्टेड है और शायद आपका साथ उसको सही कर दे, लेकिन यहाँ से आप उसके एहसान फरामोश हो जाएंगी अगर मियाँ को छोड़ेंगी। मुझे ये डिलेमा जो था ना, ये मेरे जहन में आ रहा था, एंड आई वाज फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग कि कितनी औरतें ये फेस करती होंगी, एंड इट्स डिफिकल्ट, यू नो। That is the dilemma she's facing and she's faced it her whole life. And पहले तो वीक थी बिकॉज वो छोटा था या वो उसके एपिसोड्स होते थे, लेकिन अब वो बड़ा हो गया एंड ही वो मुझे सिर्फ ये है कि उसका गिल्ट माइट प्ले ऑन हर एंड शी माइट से मैंने अब इतना कर लिया है, नाउ इट इज माय टाइम टू गिव बैक टू हिम, वरना तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा बिल्कुल। सो दैट्स वेयर आई एम कमिंग एंड फ्रॉम। वो जो हस्बैंड, आई डिड वांट टू से हाँ बोलो तुम। नहीं बोलो। मैं कह रही हूँ हस्बैंड की जो सेंस ऑफ ओनरशिप है ना सोबिया के लिए, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब आप किसी को हेल्प करते हैं इस तरह फाइनेंशियली माली तरीके से, तो फिर आप समझते हैं कि अब मैं तो मेरा ही हक है, तो वो ये नहीं सोच रहा कि सोबिया से पूछा जाएगा या कुछ ही थिंग्स कि नहीं मैं जाके करूंगा, मेरा बेटा इतना अच्छा है एंड शी हैज टू, मैंने कितने पैसे खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर फ्यूचर अच्छा, बनाने मुझे में। ये इंटरेस्टिंग लगता है कि वो हेल्प भी कर रहा है, वो चीजें भी कर रहा है, उसने अपने बेटे को कितने अच्छे से वो किया है, बट इन जब आसिफ की बात आती है तो वो बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है। ही बिकम्स दिस रियली वियर्ड गाय हु हैज नो सेंस ऑफ इंसाफ, सिंपैथी और केयर और रहम दिली, यू नो। तो मुझे उसके कैरेक्टर की ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, बिकॉज ही इज नॉट अ बैड पर्सन, he's not a bad guy, but with Asif he's really really mean and ruthless. बिकॉज ही डजंट नो व्हाट टू डू विद आसिफ। आसिफ वो जो सीन भी उन्होंने फ्लैशबैक अच्छा दिखाया था, जिस तरह वो चिढ़ा रहा था उसको, लेकिन आसिफ वो उसको। वहां तक बाप की वजह से ही पहुंचा है। बचपन में अगर वो उसको रोक लेता, उसके साथ हाँ प्यार करता, तो ऐसा नहीं यस, होता। इतनी अकल नहीं थी ना, इतनी समझदारी नहीं थी, तो इसलिए। आई डोंट नो, समझदारी या लैक ऑफ एम्पैथी, सिंपैथी एंड सेल्फिशनेस एंड इनसिक्योरिटीज, आई डोंट नो, इट्स दैट। यूजुअली हम स्टेप मदर्स का देखते हैं, इस बार हम स्टेप फादर्स का की स्टोरी सुन रहे हैं, स्टेप फादर की स्टोरी देख रहे हैं, तो या दैट इज वहम। ओके। वहम। ओके जी, वहम में ये रुखसाना ने जूस में कुछ मिलाया था क्या? नहीं, नहीं, वो उसको रात ये इतनी, करेगी। हाउ कैन यू बी सो श्योर? हर चीज तो वो जाके मिला रही होती है She's किचन not a में। fool. She's not a fool. Hello. रुखसाना इतनी बेवकूफ थोड़ी है कि इतनी ऑब्वियस चीज ऐसे देगी। वो शी इज नॉट अ फूल, वो बड़ा ओके गेम खेलेगी। उसने, आपने देखा नहीं उसने क्या बोला कि अब मैं किसी को खुश नहीं रहने दूंगी, मैं इन सबको मजा चकाऊंगी, ये उसके लास्ट वर्ड्स थे, राइट। उसने कहा ये तो तो वापस जाएगी नहीं, ये तो वापस शी जाएगी, यही रहेगी और मैं इसे कभी खुश रहने नहीं दूंगी। so basically she's playing mind games with Saira and with All of her, with the them, other all of them. Ishal, because she knew कि they both are going to think कि मैंने कुछ मिलाया है इस जूस Yeah. में, तो मैं जाके ये भी करती हूँ। So it was, she's very smart, very Yeah. sharp, yeah. So and it worked, तो अब उसकी जान पे बनी हुई है वो, अब हर और चीज वो उसने यही सोचती और उसने ये रहती भी है। टेस्ट कर लिया कि सायरा मेरे साथ है या नहीं। अगर सायरा जूस पी लेती तो इसका मतलब था सायरा ट्रस्ट है। सायरा ने जूस नहीं पिया, ग्लास गिरा दिया, तो नाउ शी नोस कि ये दोनों साथ हैं, तो उसको क्लियर है कि कौन उसके साथ है और कौन उसके साथ नहीं है, ताकि उसने जो गेम खेलनी है वो सही तरीके से खेले। वो सही तरीके से खेले। हाँ बिल्कुल सही राबिया, आपकी स्ट्रैटेजी प्लान आपने रुखसाना का सही सही मालूम किया है। अच्छा मुझे बताए, खावर क्या कुछ कुछ कर रहे थे ईशल के कान में, मुझे तो समझते तुम वापस जाओ बना के रखो, एंड देन ही सेड समथिंग, आई कांट अंडरस्टैंड बिकॉज वो प्लान तो चौपट हो गया। रुखसाना ने तो आके कह दिया कि तुम तो हो ही ऐसे और तुम तो ऐसी रहोगी, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी को खुश नहीं रहने दूंगी, तो वो खावर का जो भी प्लान था वो गया। मुझे लगता है खावर की सच्चाई सबके सामने इवेंचुअली आएगी, लेकिन ईशल इतनी सीधी और इतनी बेवकूफ नहीं है। ईशल विल स्टैंड अप टू द चैलेंज, और वो तो इसको जवाब में मत, वो देख लेगी बहुत जल्द कि ये क्या कर रही है, वो उसके मुताबिक रिएक्ट करेगी। ईशल जो है रुखसाना की परछाई हो बन जाएगी एक तरीके से। सायरा ये नहीं कर सकती, सायरा थोड़ी सी जज्बाती है, लेकिन ईशल में वो तेज तरारी है जो जो रुखसाना के साथ खड़े होने के लिए जरूरी है। बिल्कुल, because if we throw our mind back, Ishal has done that before. Yeah, Remember, शुरू में जब वो कर रही थी, अब उधर से बर्तन तोड़े हैं, अब वो आगे जाके she's going to play it back, yeah. and that's going to happen. But I want now the story because बहुत सारी चीजें अभी तक उन्होंने सीख रहे। अब फरीद का नहीं पता चला कि नसीम के साथ क्या हुआ, ये नहीं पता चला कि वो किसका बेटा है। So all these things are hidden. बल्कि I was happy though that he came and he got a job. That's something Ruxana doesn't know. When Ruxana finds that out, she's going to lose it.
तो उनको खत्म करें जो पुरानी कहानियां एंड देन मूव ऑन, बिकॉज अब काफी स्लो। So there's not literally वहम में होता है कि बस एक छोटा सा कदम, आधा कदम लेते हैं और फिर बाकी चीजें वही हो रही होती हैं. So we can move on. I just want to call out one dialogue जो उन्होंने कहा था जुनैद ने when he dropped ईशल कि मैंने इसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, वो मतलब मैं तो उसको तो ये डायलॉग्स आप ना कहें. I know he was very angry, I know that's what they showed it, but I would prefer it if they don't have these dialogues. आप गुस्सा और तरीके से भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं rather than that way. और इसको इस तरीके से बोलने की जरूरत नहीं है कि आपने एहसान किया है. आपने कोई एहसान नहीं किया है, आपने अपना आप बचाया है. उसके ऊपर जो जुल्म होता है आप अपने कैरेक्टर को भी खराब करें अगर आप किसी के ऊपर हाथ उठाते हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट हिटिंग द अदर पर्सन, इट्स अबाउट यू योरसेल्फ आल्सो. व्हाट आर यू डूइंग, यू नो. जब आप चोरी करते हैं, किसी को कत्ल करते हैं, तो आप दूसरे का नुकसान तो करते ही करते हैं, आप अपने कैरेक्टर को गंदा करते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी का एक बहुत गंदी साइड लोगों को दिखाते हैं. सो अगर आपने हाथ नहीं उठाया तो वो आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, वो आपकी चीज है, इसलिए किसी पे एहसान नहीं है. आपने अपने ऊपर एहसान किया है शायद. Yes, you are so right. And जेनेवा on that note, शाजिया के ऊपर कुछ हुआ है, वो हर बात पे एग्री कर रही है मुझसे. Shazia is just so happy because we forgot to discuss कि पाकिस्तान is in the finals, और मुझे अभी ख्याल आ रहा था कि तुमने कहा था कल आज वापस जा रही हो, so we can do that. We can do it towards the end. Okay. Which drama are we doing now? Let's do अगर. ठीक है. सो अगर में ना Okay. मुझे 2-3 डायलॉग्स बड़े इंटरेस्टिंग लगे. सबसे पहले वो जो हुरिया का डायलॉग है कि लड़कियां अपनी शादी की बात क्यों नहीं कर सकती. Very good. I Yes. just loved it the way she said it, and she was so unapologetic. And I was like, yes, we need to talk about this. Like, वो कहती है माँ से, what's the big deal? And then, as expected, माँ कहती है इतनी बेशर्मी और बेहयाई and all those बातें जो लड़कियों को बोला जाता है. So while I find it sad that अगर मैं execution में कुछ मसला है, I'm really happy that it's talking about 2-3 very important things, जो कि एक ये चीज थी. हुरिया जो ये शादी की बात करती है. But at the same time, Shazia, what did you think about her mother's response? So I'm double-minded about it कि उसकी माँ ने कहा मैं चाहती हूँ मेरी बच्चियां अपने पाँव पे खड़ी हो फिर वो शादी करें. But at the same time, उसने हुरिया के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता वो मना करी है. Where do you stand? देखो एक्चुअली द प्रॉब्लम इज कि मैंने एक्चुअली यही पॉइंट हाईलाइट किया हुआ था तुम्हारे लिए टू आस्क यू कि यहाँ दो चीजें हो रही हैं, क्योंकि हमने वो फ्लैशबैक देखा था कि उसने एनी के साथ क्या किया था अम्मा ने, इसलिए हम उसको जज कर रहे हैं. हम कह रहे हैं कि नहीं, शी जस्ट वांट्स के द गर्ल्स शुड कीप अर्निंग मनी, एंड ये नहीं शयास को ये है कि मैं अपना गिल्ट है कि मैं एनी की पहले शादी कराऊं, मैं छोटी बहन की कैसे करा सकती हूँ. शी Otherwise, अगर आप उनके सेंटेंस को in isolation लें, that was not wrong what she said. But having said that, and what she said, just to repeat is कि she said कि बच्चियां पहले पढ़ाई खत्म कर लें, काम करें, अपने पैरों पे खड़ी हों, कल अगर उनको प्रॉब्लम हो. So I feel okay, she's learned from her own experience, which is great. But she also has to look at Huria's personality. ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट आई थिंक पेरेंट्स में होता है कि आप अपने बच्चे के लिए अच्छा चाहते हैं, लेकिन अब बच्ची बड़ी हो गई है और बच्ची कह रही है कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो वो नेगेटिव ही होती रहेगी और वो ज्यादा मुश्किल से मुश्किल तर हो जाएगी. बहुत मुश्किल होगा उसको समझाना कि बेटा पहले ये करो फिर. सो इट्स अ हार्ड वन. आई थिंक एट द सेम टाइम शी शुड हैव सैट डाउन विथ हुरिया एंड टॉक टू हर, सेड तुम्हें शादी करनी है, मैं मंगनी कर लेती हूँ, लेकिन तुम पहले पढ़ाई खत्म करो, ग्रेड्स अच्छे लेकर आओ, 1 साल 6 महीने काम करो, देन आई थिंक that's where she could have struck the balance. Okay, I think जरूरी नहीं है, as you said, हर बच्चे का different. हुरिया does not want to study. हुरिया ने कितनी बार बोल दिया, हुरिया के तो ड्रीम है कि वो घर में रहे, and there's nothing wrong in it. There's nothing wrong in it because I do not want to judge people or judge women who are sitting at home and who are not working because इट्स ओके, ये आपकी पर्सनल चॉइस होती है. और वो उसके ससुराल वाले कह भी रहे हैं भाई कि वो लड़का जो आया है कि हम वेट कर लेंगे, आप अभी शादी मत करें. तो मुझे लगा कि उसकी माँ का जवाब सही नहीं था. इट वाज या तो वो समझ रही है कि डू यू थिंक वो उसके स्टैंडर्ड पे लड़का उतर नहीं रहा एंड शी थिंक्स हुरिया डिजर्व्स बेटर. वो कह रही है मुझे लगा बहुत अच्छा रिश्ता था, हमारे टाइप का था, उन्होंने ये भी कहा. अच्छा ये कहा, ओके ये मिस कर दिया मैंने. उन्होंने कहा कि अच्छा था, हमारी फैमिली के टाइप का था. एनी और भाई उसकी साइड लेंगे, बट वो दोनों भी चुप कर गए. भाई कितनी देर तक यू आर इन अ सिचुएशन. हो जाएगा प्रोमो में, प्रोमो में हो जाएगा. एंड इज टेलिंग हर मदर कि आप पूरिया की शादी कर दें जहां है. बट आई वांटेड टू से एनी इतनी परेशान क्यों थी जब जुनैद खान के कैरेक्टर ने उनको
अपने ख्यालात का इजहार किया, अपने इमोशंस का, तो व्हाई वाज शी शॉक्ड? आई मीन वाज इट नॉट ऑब्वियस? हाँ, वही वही मैं कह रही, क्योंकि वो अपनी सारी दिल की बात तो उनसे कर रही होती है, कॉन्फिडेंट वही है, उनके सब कुछ। आई थिंक उसने कभी अपने दिमाग में ये डाला ही नहीं है राबिया कि ये इंसान जो मुझसे छोटा है, शी हैज, और फिर बेचारी के लिए रिश्ता भी देखो कैसा आया, तो उसको ये ख्याल भी नहीं है कि ऐसा इंसान विल फॉल इन लव विथ मी और फॉल फॉर मी। तो इसलिए आई थिंक दैट्स वेयर द सरप्राइज केम फ्रॉम। शी थॉट दैट शी इज लिविंग इनसाइड हर हेड, whatever she's thinking about him or denying herself thinking about him is all not on him, just what she is thinking. डू यू So थिंक this is ये टॉपिक, क्योंकि मैंने अक्सर जगह ये देखा, अभी मुझे मैसेजेस भी आए कि ओ अभी तो हमने दोबारा देखा था, अब हमें दोबारा ये टॉपिक देखने की क्या जरूरत है? हाउ डू यू फील अबाउट इट? अभी तो हमने थप्पड़ देखा था, हमें दोबारा थप्पड़ देखने की क्या जरूरत है? That's my answer. अभी तो हमने जलन देखा था, हमें दरार देखने की क्या जरूरत है? So I think कि अब मैंने ये सीखा है जिंदगी में, कितना फिलोसफिकल ये है कि आपको जब अपनी बात कहलवानी होती है ना, आपको बार बार दोहराना होता है, मुख्तलिफ तरीकों से दोहराना होता है, and in different settings, different ways, so that it, especially because it's something new and people will not, एक ड्रामा आएगा खत्म हो जाएगा, nobody will think about it. And I also So feel please keep Kubara was very unrealistic. The age gap was so Yes. big, you know. But इन लोगों का it's very realistic. It is possible. अब 8 साल 10 साल के डिफरेंस पे शादियां होती हैं, ठीक है? सो इनका I don't know कितना है, बेबी 6 साल या इतना मुझे समझ नहीं आ रही है. I can't figure out कि exactly कितना एज डिफरेंस है. सो एक तो तुम्हारी बात बिल्कुल सही कि जितना हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे उतने ये नॉर्मलाइज होंगे. एंड मे बी ये सिचुएशन ज्यादा रियलिस्टिक है जिससे ज्यादा लोग रिलेट कर सकते हैं. मे बी दिस विल बिकम अ नॉर्म, दिस विल बिकम ओके, एंड हम आईब्रोज उठाना बंद कर देंगे जब एक बड़ी उम्र की औरत एक छोटे लड़के से शादी करेगी, थैंक्स टू ड्रामास लाइक दिस, यू नो. अब शावेज के अब्बा को जरा पता लगने दो, वो क्या गुल खिला रहे हैं कॉलेज में, फिर पता चलेगा एक्चुअली क्या हो रहा है। वो तो उन्होंने कह दिया है अपनी दिल की बात। नाउ कमिंग टू चांदनी, आई लाइक इट. बेचारी को हर वक्त बेचारी पे वो होता रहता है. आई डू होप कि चांदनी के कैरेक्टर में ज्यादा आगे जाके पोटेंशियल हो. एंड आई लव हुरिया. वो तो ऐसी ही वो उसकी माँ से कहती है चाय, तो वो चांदनी को बुलाती है, चाय का कप, पता नहीं पानी या चाय, वो पानी लेकर. आई वाज लाइक दिस इज रियली गुड. एंड हिना अल्ताफ इज डूइंग सच अ ग्रेट जॉब. वो इतने मजे से उस कैरेक्टर को कर रही है कि एक्चुअली यू एंजॉय वाचिंग हर. शी इज मोस्ट प्रॉब्ली, उनका और उसामा का जो कैरेक्टर है, they are most probably the most enjoyable characters in the whole drama, you know, which are given I some. totally agree with you. I wanted to say that sometimes you feel it that the actor is enjoying playing the character, and then and that's हिना के बारे में बिल्कुल ये लग रहा है, स्पेशली जब वो दरवाजे पे भी आमना सामना होता है ना, वो ग्रोसरीज लेकर आता है और वो पीछे से कह रही होती है उसको, एंड देन वो कहती है अम्मा कुछ नहीं, वो हंस रहा था बाद में, कुछ उसको फर्क नहीं पड़ता. सो आई एम रियली लाइकिंग दिस. एंड उसामा आल्सो हैज ग्रोन ऑन यू. हिज का नाम क्या था? फर्रुख. Farrukh has also grown on you and very quick. मतलब वो मजे का लग रहा है, गली कार, वो कोई बदतमीजी भी नहीं कर रहा, he's very sincere. So yeah, we are liking that connection. Okay, we move on to Fark. Yes. Okay. So, सवाल आज हर ड्रामे के लिए एक सवाल रखा है. You want to say something first? नहीं, आप सवाल पूछिए. थप्पड़ जरूरी था क्या अब्बा को मारना आइजल को? I agree, नहीं जरूरी था. Okay. Here's the thing. You can show anger, and I'm saying this from the last one also जो हमने बात करी थी स्लैब की अभी. आप एक बहुत अच्छे इंसान को जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, आप दिखाते हैं कि जब वो गुस्से में आता है ना, वो उतना ख्याल कर रहा होता है अपनी बेटी का कि वो एक थप्पड़ भी लगा देता है. अब अगर वो अपनी बेटी को लगा सकता है तो वो अपनी बीवी को भी लगा सकता है. सो in our culture we think it's okay अगर बच्चों को कभी कभी मार पिट जाए पेरेंट्स से. It's not okay. And secondly, showing a man hitting a woman, whether it is your daughter or your wife or your sister, जो फितूर में भी हुआ था, is not okay in any way. So I was very very disappointed to see that, because उसके फर्स्ट एपिसोड में हमने एक बड़ी सॉफ्ट साइड देखी थी कमाल की आइजल की तरफ, और अब बाद में हमें फिर सॉफ्ट साइड दिखाएंगे, लेकिन आप ये दिखा रहे हैं कि in a fit of rage he can just raise his hand and slap this girl, which was so off for me. Also we need to understand, हमेशा हमें ये दिखाने की, देखिए जब ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, जब आप ये चीज दिखाते हैं, आप एक थॉट प्रोसेस को इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं कि गैरत का मामला है कि उसने देखा कि मेरी बेटी एक लड़के के साथ इनअप्रोप्रिएट पोजीशन में या सिचुएशन में थी, तो ये गैरत का मामला और मैंने उसको थप्पड़ लगाया. एंड बहुत से लोग इससे बोलेंगे कि हाँ गलत फहमी थी, बट बाप को तो नहीं पता, उसने सही किया. नहीं, अगर ये था भी और वो वाकई भी, वी नो
कि वो ऐसा कुछ नहीं था, they were just doing, you know, दोस्त थे वो ऐसी कोई हरकत नहीं कर रहे थे, बाप को गलत फहमी हुई है, वो सिचुएशन ऐसी थी। लेकिन अगर वो वाकई इन्वॉल्व भी थी तो उसका हल ये नहीं है कि आप उसे मारें, आपको बैठ के समझाना है, बात करनी है, एंड यू नीड टू टेल हर व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, एंड यू नीड टू कीप एन आई ऑन दैट। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच दीज कैरेक्टर्स कुड हैव कम्युनिकेटेड। नाउ कमिंग टू मारपीट जो तुमने बात की है, अब आप दूसरी साइड पे चले जाएं, व्हिच इज इरसा। Issa and her father. फादर, इरसा के बाप ने भी उसको मारा, और उसने भी शक पे मारा कि ये कौन है, इसका तुम्हारी गली के बंदे के साथ क्या है। लेकिन एक तो आपने एक थप्पड़ का उसके और दिखाया, वो आपने दिखाया नहीं, विजुअली नहीं दिखाया, और बाद में आपने दिखाया कि उसके बाप ने इतना, उसकी दोस्त आती है तो उसकी दोस्त कहती है कि उसके बाप ने उसको उस जगह मारा जहां नजर नहीं आया। दैट इज समथिंग आई वाज ओके विद, बिकॉज आई फील दिस इन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वी टॉक अबाउट थप्पड़, बट वी डू नॉट टॉक अबाउट फिजिकल अब्यूज बिटवीन, जो फैमिलीज के अंदर होता है, which is also not just between husband and wife, between fathers and daughters, fathers and sons also, and it leaves a very very big scar on emotionally on people. So मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। एंड खैर वो स्टोरी बिल्टअप भी हो रही है, ये दोनों चीजें आर गोइंग टुवर्ड्स मेकिंग कमाल एंड यू नो इरसा की शादी की तरफ जा रही हैं ये चीजें। थोड़ा मुझे लगा, तुम्हें लगा शाजिया कि बहुत जल्दी उन्होंने एक दूसरी एक्सट्रीम पे ले गए कि बाप ने उधर भी पकड़ लिया, बाप सिगरेट पीते हुए भी देख लिया बाप ने, और इसीलिए वो जाएगा शादी की तरफ, यू नो? हाँ, इसीलिए जाएगा। उन्होंने जल्दी किया, जहां हम कहते हैं कि थोड़ा ठहराव होना चाहिए कि आपने एक मोमेंट बाप और बेटी में कोई कॉन्वर्सेशन नहीं दिखाई, कुछ नहीं दिखाया, आपने सिर्फ ये दिखा दिया, या वो कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है कि वो बात नहीं कर रही है, बट दे डिडंट शो एनी कनेक्शन। So yes, I think it is, they are pushing it a little too मुझे much. लगा आपने शुरू की कुछ एक साथ में दिखाया कि उन दोनों के दरमियान बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है, बाप से वो बड़ी क्लोज है, बाप रियली केयर्स फॉर हर। अब आप एकदम से दिखा रहे हैं कि दूसरी एक्सट्रीम पे आप चलेंगे, तो मुझे वो समझ नहीं आई। आई विश कि थोड़ा स्लो लेके जाते, बट आई गेस दे वांट टू मूव द स्टोरी फॉरवर्ड वेरी फास्ट, यू नो। कोई कनेक्शन ही नहीं था। What I did want to point out was I really like that whole sequence, उन्होंने गाड़ी का, कमरे में जाना, लूडो का, फिर एक बच्ची को जाना था, फिर वो दूसरा उसको ड्रॉप करना, बड़ा नेचुरल प्रोग्रेशन दिखाया, so that we the audience is judging them, so they played with that very sensitively and I like it. They could have made us become judgmental about Aizel too, which we didn't, because we knew कि वो ऐसा नहीं कर रही है कुछ। और शादी ये भी था, मुझे क्यूरोसिटी भी हुई थी, अच्छा वेयर इज दिस गोइंग टुवर्ड्स। अच्छा मुझे बिल्कुल नहीं एहसास हुआ था, और मैंने प्रोमो भी नहीं देखा था, अगर प्रोमो में दिखाया तो आई वाज लाइक वेयर इज दिस स्टोरी गोइंग टुवर्ड्स, कि ये क्या होगा। तो मुझे उन्होंने हुक करके रखा हुआ था, आई वाज लाइक अच्छा अब ये लूडो खेल रहे हैं, अब क्या होगा, ये गुस्सा करेगी, ये कुछ होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो आई वांट टू अप्रिशिएट एहसन दानिश फॉर एग्जीक्यूटिंग इट दिस वे। ओके ठीक है, आर वी डन और डू वी वांट टू टॉक अबाउट मोर? No, we are done. I did want to say कि वो जो उनका कैरेक्टर है, जमशेद का कैरेक्टर, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे स्वीट लग रहा है, एंड मुझे ऑलरेडी पता है कि मुझे तरस आएगा उनके ऊपर जब इरसा दूसरी तरफ चली जाएगी। अच्छा मुझे वो बिल्कुल राइद का जो कैरेक्टर है, मुझे वो बिल्कुल भी मुझे कोई सिंपैथी नहीं। आई एम जस्ट लाइक भाई तुम गली में लड़की को क्यों रोक रहे हो, उसको उसकी तुम्हारी वजह से उसको मार पिट रही है, पहले भी अभी पिट रही है, तुम लेटर लिख रहे हो उसको, तुम जाओ भाई शादी करो, और इतनी औरतें देख रही हैं। सो आई एम सॉरी, आई वाज क्वाइट इरिटेटेड। आई थिंक पहले वो जानना चाहता था ना, इज शी इंटरेस्टेड और नॉट, तो उसकी बात ही नहीं हुई सही तरह से, वो छत पर ही नहीं जा सकी बात करने के लिए, ऐसे तो नहीं भेज सकता। इतनी देर लगेगी? खैर एनी केस, चलो खैर चलो लेट्स। बट I also I'm liking the उसकी दोस्त के साथ, इरसा की अपनी दोस्त के साथ जो बातचीत हो रही होती है, मुझे क्यूट लग रही होती है। आई एम लाइकिंग इट। वो कहती है कि हमारी तरह है जो खाने के बाद खाना शुरू करते हैं जब मेहमान चले जाते हैं, तो ये छोटी स्वीट चीजें थोड़ा सा लाइट मूड एंड यू नो रिलेटेबिलिटी ऐड कर रही हैं ड्रामे में, व्हिच आई एम एंजॉयिंग। सो आई थॉट आई शुड पॉइंट दैट आउट। जब दोस्त के साथ वो आती है और कमाल उन दोनों को पकड़ लेता है और वो कहता है कि मैं इनके बाप का, इनके फादर का दोस्त हूँ, एनी कवर्स अप, वो थोड़ा सा वो फैंटेसी टाइप था, थोड़ा सा अनरियलिस्टिक था, बट क्यूट था। चलो ठीक है, यू नो। एंड देन ट्रू, आई थॉट इट वेरी, थोड़ा सा मुझे हजम करना मुश्किल हो रहा था कि वो इतना भी कहता है कि वो दोस्त बहुत दूर तक नहीं गई होगी, आप इधर ही रहें। Was it right? Would you let a bit too much, and would you encourage somebody to be fake like this and not wonder कि क्यों झूठ बोला हुआ है and stuff like that, you know? And also because the age difference is so much. Sorry, I'm being judgmental, I think. Oh God, I am being judgmental. No, Rabia, we have to draw a line, because that girl, Irsa, is like,
the same age as Aisel, that is जो तुमने point out किया था, so That's इसलिए okay. it looks very. But बात तो वही हो जाती है ना शाजिया कि okay, I'll tell you what, okay, I think डंक में भी यही हुआ था, डंक में भी यही हुआ था, you're right. नहीं, what I'm saying is that कि it is okay for two people to marry irrespective of the age difference between them. इस केस में मुझे ऑफ इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई इंटरेस्ट एज सच शो नहीं किया है, और अभी तक उसको छोटी मतलब he's not shown, Kamal has not shown any romantic interest in her. She has not shown any romantic interest in them, in him. उन दोनों का कोई ऐसा interaction भी नहीं दिखाया है, और he being the boss and the owner of this place should have put some boundaries कि आप ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है, उस वक्त उसकी बेइज्जती नहीं की तो बाद में तो एटलीस्ट उसको बोलना चाहिए था कि प्लीज डोंट डू दिस अगेन, डू नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दिस, बिकॉज ये गलत है. चले वो लड़की अच्छी है और ये गलत है, आप क्यों फेक बने, आप क्यों किसी के सामने झूठा कुछ करें जस्ट बिकॉज वो हीरोइन है. वी कांट जस्टिफाई कि हाँ ये बड़ा क्यूट एंगल लग रहा है. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से. उन्होंने उनको खाने पे बुला लिया उसके बाद. या दैट्स टू गुड टू बी ट्रू. हजम नहीं हो रहा मुझसे. अच्छा, हाँ थोड़ा सा ज्यादा वो बिकॉज देन फिर वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर खत्म हो जाता है. बट वन थिंग, इफ यू वॉच द प्रोमो तो आरिफ ने कहा है इरसास फादर कि मैंने तो सोच लिया है कि तुम्हारी शादी मेरे मालिक से होगी. ही सेज दैट. So I don't know what his plan is, but how it's going to happen. होनी तो है, बट हाउ कैन ही थिंक अबाउट इट, इट्स रियली फनी बिकॉज ओ खैर चलो. He's thinking what we are thinking. बिकॉज वी नो, हमने प्रोमो देखा हुआ है, हमने ओएसटी देखा हुआ है, तो हमें तो पता ही होगा. उन्होंने क्लियर दिखाया कि दोनों की शादी होगी, तो हमें तो इसलिए पता है ना. बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल. जिनीवा का असर शाजिया पे अभी भी तारी है, चल रहा है आगे. चलो. तो कैसी तेरी खुदगर्जी. आपसे कैसी तेरी खुदगर्जी, राइट, जस्ट टू ड्रामास. या ओके. ओके. कैसी तेरी खुदगर्जी. क्या बोलूं, मतलब वही बात है कि मुझे अपने आप को रोकना पड़ता है और कहना पड़ता है, राबिया यू कैन नॉट एंजॉय दिस, यू कैन नॉट सी द क्यूट मोमेंट्स बिटवीन शमशेर एंड महक, बिकॉज शमशेर सही बंदा नहीं है. और क्या शमशेर पे ट्रस्ट किया जा सकता है क्या, दोबारा वो एक गुस्से की फिट में नहीं जाएगा. सो बस ये जब तक ऐसी तेरी खुदगर्जी में देखती रहूंगी, मेरा ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा. आई डोंट नो अबाउट यू. Okay. So I'll come to the quote unquote cute moments in a bit, but I just wanted to say कि उन्होंने वो जो प्ले किया था जब शमशेर उससे बात करता है कि तुम्हें कोई और गाड़ी में लेने आ गया था, ऐसा ना आ गया था, तुम्हें नहीं आया था. उन्होंने जरा दबा हुआ रिएक्शन उसका दिखाया जो मुझे अच्छा लगा. neither was he being the old शमशेर and neither was he being all sweet, and वो थोड़ा सा मिडिल का था. थोड़ा सा गुस्सा आप दिखा सकते थे वहां, क्योंकि हमें थोड़ी सी रिलेटेबिलिटी होती है. अच्छा ये आदमी वहां से आ रहा है जो ऐसे करता था, वो ऐसे नहीं कर रहा, अब अपने आप को कंट्रोल कर रहा है. अगर वो गुस्सा दिखाते तो हम जैसे लोगों को मौका में देखा, हमने तो कहा था, वो फिसल गया, उसे फिर गुस्सा आ गया. तो इसीलिए उन्होंने ये नहीं दिखाया. उन्होंने दिखाया कि ही हैज कंप्लीटली चेंज, बिकॉज जब वो शिकवा भी करता है तो उसका शिकवा रूठा हुआ शिकवा है. उसका शिकवा गुस्से वाला या कंप्लीटली शक वाला नहीं है. उसका शिकवा दुखे हुए दिल का है कि अरे तुम तो उसके साथ चली गई, मैं तो तुम्हें लेने आया था. नॉट लाइक हाउ डेयर यू गो विद हिम एंड यू आर स्टिल इन लव विद हिम एंड आई यू नो आई न्यू. वो ये वाला शिकवा उसका नहीं था. तो उन्होंने शमशेर का ये चेंज तो इस चीज से और भी स्टैब्लिश किया है कि शमशेर हैज चेंज. बट माई थिंग इज अगेन, में वो जो कहते हैं ना, वो सुई अटक जाती है तो मेरी सुई वहीं अटकी हुई है. दैट आई विश आप लोगों ने थोड़ा सा दरवाजा खुला छोड़ा होता, उसकी थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पहले दिखाई होती, कोई ट्विस्ट दिखा देते जिससे शमशेर का इतना पागलपन, इतना ऑब्सेसिवनेस हमने नहीं देखा था, तो हम इस वक्त इस ड्रामे को कितना एंजॉय कर रहे होते हैं. वी वर लाइक यार वाओ, बट राइट नाउ आई कांट. I totally agree. I understand where the dilemma is coming for them, क्योंकि वो एक अनरियलिस्टिक चीज दिखा रहे हैं ना, इसलिए वो फंस गए हैं, क्योंकि वो दिखाना चाह रहे हैं. अच्छा नाउ लाइफ चली गई. It's just people like you and me. The views are 8 million views, 9 million views in just like few hours. So it's just sad. And I'm sorry. It's so, I mean, I want to talk to the whole, I want to say to everybody in the creative team, to the creators, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर यार. आप लोग बहुत बहुत गलत ख्वाब दे रहे हैं औरतों को कि एक इंसान जो बिल्कुल गुस्से में पागल हो जाता था, वो चेंज हो सकता है, वो आपके लिए, वो आपसे मोहब्बत कर सकता है और मोहब्बत में कुछ भी कर सकता है. क्योंकि ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा. जो इतने गुस्से में इंसान होते हैं
वो इस तरह नहीं चेंज हो सकते। नहीं हो सकते। आई नो पीपल हु स्टॉप वॉचिंग, they were very excited about it। लोगों ने नॉवेल्स पढ़ी, इसमें उनको कैरेक्टर थोड़े सिमिलर लग रहे थे, लेकिन अब ये कहानी उस नॉवेल से हर तरफ से हटके कहीं और चली गई है, एंड पीपल हैव वॉच, बट योर व्यूज आर अ लॉट। मुझे बताएं कि जब बिजली जाती है, मोमबत्ती ऑन होती है, दरवाजा खोलती है, वो कहती है क्या मैं यहाँ सो सकती हूँ? सो आई विश उसको भी एग्जीक्यूशन में वो थोड़ी सी बातचीत दिखा देते। वो दोनों के दोनों बिस्तर में दूसरी तरफ मुंह करके लेटे हुए, वो कहता है तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आंखें बंद करती हैं, उनको इत्मीनान हो जाता है, वो सो। आई नो वी आर स्ट्रेच, वी आर चैलेंज फॉर शोइंग intimate scenes, and I'm not saying that we have to show intimate scenes, but people have shown ways of doing this and still giving that Why? feeling। अगर आपको दिखाना ये क्यूट मोमेंट, तो आई थिंक execution could have been better। आई थिंक मेरे लिए तो बहुत काफी था। इट वाज नॉट जस्ट क्यूट, इट वाज वेरी काफी था। बहुत काफी था। एंड the fact that they were both very comfortable added to the chemistry between them. The fact that they were, दोनों दूसरी तरफ मुंह करके लेटे हुए थे was to show कि they are coming towards each other, but there is a दीवार है दोनों के दरमियान जिसको टूटने में थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। वो हिचकिचा भी रहे हैं, और फिर वो उसको कहता भी है तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। So it's a very slow progression that's happening between the two of them, and I loved it. Sorry to say my Okay, guilty I pleasure, yeah. but I loved it and I found it to be very, very powerful. And that's why, Really? yes, I thought it was very Okay. well executed and within limits. So it was, the classic thing was कि you communicated just the right feeling, just the right seductiveness, the right kind of romance that we wanted to see, but आपने किसी भी हद को क्रॉस नहीं किया। आपने किसी भी कोई ऐसा एक्शन नहीं दिखाया जिससे हम कहते हैं क्रिंज फील होता है, या हम कहते हैं ओ इन्होंने ये कर दिया। Nothing. They didn't even come very close to each other, and still the scene was so impactful. No, उससे पहले I felt they could have not shown the bed. They could have been sitting on the sofa. She could have put her head on his shoulder, या नहीं भी करती, हाथ पकड़ लेता उसका, because you needed something tactile to show that he is there। You see, देखो जब आपको डर लगता है आप क्या करते हैं? You want to hold, you want to know there's another human being there ना। अरे भाई बिस्तर में लेट गई उसके साथ, इससे ज्यादा क्या होगा? 2 मील दूर लेटी हुई और दिखा भी नहीं सकते बिस्तर में, तो मैंने कहा सोफे पे तो बैठ सकते हैं ना साथ एटलीस्ट। आधे फुट का फासला Yeah. था, and I think lying down in the bed with each other is the most intimate scene they could have shown. I didn't want intimacy there. I wanted something which was affection, which was not intimacy but affection। आप लोग सब बता दें कि आप लोग शाजिया की तरफ ज्यादा हैं या मेरी तरफ ज्यादा है, बिकॉज आई थिंक अफेक्शन छोड़ो भाई, उनको ये दिखाना था कि महक ने वो क्रॉस कर ली है लाइन। लाइट जाना वाज द एक्सक्यूज शी नीडेड टू क्रॉस दैट लाइन टुवर्ड्स शमशेर। और क्योंकि उससे पहले उन्होंने एक सीन दिखाया, नाउ सी हाउ केयरफुली दे आर डूइंग इट। उससे पहले एक सीन शमशेर याद करता है या महक याद करती है, जिसमें शमशेर और महक बात कर रहे हैं, शमशेर इज वेयरिंग अ शर्ट which is not a full shirt, and she's talking to him. So these are small things that they are doing, which are showing the progression of movement of Mehak and Shamsher towards each other, and I think they're doing a good job at it. मुझे तो अच्छा। Rabia's observation powers here are becoming very strong। चले आप लोग बताइएगा, you preferred कि बिस्तर पे ही रहता सीन या सोफे पे आ जाता? That's the conflict here। तंग आ गए भाई, वो हर वक्त सोफे पे बैठे रहते हैं, वो उधर खाना लाके देती है, इस सोफे पे वो बैठा होता है, इस सोफे पे नहीं, वो उसका हाथ पकड़ सकता था। They could have held hands, they could have had some connection without having an intimate scene। So yeah, ये ना, ये तो आगे जाके होगा, अगर वो कत्ल वतल नहीं आ गया, और अभी मर्डर का प्लान जब सारा हो रहा है, तो अभी तो उनको तो आना है कि वो एक क्रॉस करे। आई लाइक इट दैट दे आर टेकिंग इट स्लो। okay, I just felt it was very frozen। हाँ, frozen, that was the word coming to me कि दोनों अलग-अलग 2 मील दूर बैठे। आप जाके YouTube पे कमेंट्स पढ़ें, पीपल आर जस्ट लाइक केमिस्ट्री आ गया भाई, कोई फ्रोजन कहीं से नहीं था। अच्छा खैर, कमिंग टू निदा एंड हर रिएक्शन। निदा का रिएक्शन बिल्कुल ठीक था। निदा का कैरेक्टर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। निदा ऑलरेडी लड़ रही थी इस बात से कि उसकी शादी हो गई है, जहां वो नहीं चाहती है। मदर इन लॉ सास के साथ डील कर रही थी, और अब जाके उनको एहसन के साथ भी पूरा फुल टॉस वो मिला जो शी नीड्स वन पर्सन शी कैन। एहसन ने उसका साथ दिया था, उससे कहा था मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ूंगा, ये करूंगा, फिर एकदम से एहसन पलट गए और बदतमीजी कर रहे हैं।
And more than Nida, I'm very angry at Ehsan's character. क्योंकि यहाँ आपने कुछ छोड़ा नहीं है ना हमारे लिए. वहां भी आपने दिखाया वो शमशेर के साथ बदतमीजी कर रहा है, यहाँ भी आपने दिखाया वो निदा. दिस इज नॉट द एहसन वी न्यू. एंड एक्चुअली एहसन का कैरेक्टर ऐसा है, राबिया जो प्लेन होता है ना, जो रनवे के ऊपर जो है ना आगे पीछे जा रहा होता है, वो टेक ऑफ ही नहीं करता. एहसन्स कैरेक्टर इज एक्चुअली नॉट टेकिंग ऑफ, इट्स एक्चुअली डूइंग अ नोज डाइव इनटू नोवेयर फॉर मी. दिस इज इट. साफ पता चल रहा है कि उसकी नीयत महक की तरफ गलत है. वो बार बार उससे बातें करने के बहाने ढूंढ रहा है, बार बार उसकी तरफ जा रहा है. भाई अपने काम से काम रखो, तुम्हें पता है उसका मियाँ कैसा है. Why are you doing all of this, you know? So I was also very disappointed with Essence character. Now the third angle is the murder जो महक और उसका आया है. वो बाप पे हैरान हूं मैं यार कि वो छोड़ नहीं रहा है. इतना एक्सट्रीम इस ड्रामे में हर चीज बड़ी एक्सट्रीम दिखाई है. शमशेर का कैरेक्टर इतना एक्सट्रीम है, बाप का कैरेक्टर इतना एक्सट्रीम है कि वो बीवी मर गई बट ही हैज नॉट लर्नड हिज लेसन एंड ही वांट्स महक मर्डर्ड. अब आगे आई डोंट नो क्या फैंसी कोई फैंटेसी टेल होगी कि वो गवाही दे देगा एंड वो बच जाएंगे. सो इट्स इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट कि आगे जाके क्या होगा. आई थिंक इज गोइंग टू कम बैक. ये वापस आ जाएगा शमशेर अपने घर में. आई थिंक प्रोमो में कुछ ऐसा ही दिखाया था. बस मुझे बस कम बैक एंड मार ना दें. बस मार दिया तो फिर उसको हीरो बना देंगे. That's the thing that I don't want to see. That's the end. वो हीरो वैसे ही बन चुके हैं. वो हीरो बन चुके हैं. उन्होंने कह दिया कि मैं यहाँ हूँ तो तुम, मैं जब मुझे अच्छा लगता है जब तुम कहती हो कि मैं तुम्हारा हूँ. So वो that is already there. Okay, हब्स जी. हब्स पे क्या आपके तासुरात हैं? आयशा, बासित एंड सोहा. हब से मेरा एक तासुर ये है कि वो जो जहां हम कहते हैं कि हमें रिलेटेबिलिटी चाहिए, और वो जब दांत ब्रश कर रहे होते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपको एक बाथरूम मिल गया जहां 2 सिंक्स हैं, आप बराबर बराबर आप कैमरा लगा के बहुत मजे का दिखा रहे हैं कि लोग दांत ब्रश कर रहे हैं. वो दांत ब्रश तो बेचारी के दांत ही घिस गए होंगे बाय द एंड ऑफ दैट सीन. फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके. सेकेंडली, I liked it when it started off, but when it went on and on and on, and the conversation never moved to the room, maybe because they had set up the camera there and they said, oh, we have a great shot, we have to finish it here. That's what it was feeling like. आपने पूरी conversation वहां करके खत्म कर दी. वो unrealistically खिंचा हुआ लग रहा था. वहां से आप कमरे में I found it very off. I was like, I don't want to see them just. और उसमें बोले नहीं भाई मुझे इतना रियलिस्टिक नहीं चाहिए, इतना रियलिस्टिक नहीं चाहिए. इट वाज जस्ट ऑफ. आई डिडंट लाइक इट. सॉरी. मुझे तो बिल्कुल बहुत मुझे it was long. It started it. नहीं मुझे तो एस्थेटिक क्या लगा क्योंकि वो दांत ब्रश करने के बीच में भी बात कर रहा है और वो it was just very off. I'm sorry. It was a bad move. I would not want to see it again. And Basit actually finished his last brush on time, but Aisha went on and on and on and on and on. It was just too long. It went on anyway. So that's that. आज शाजिया में राबिया की रूह घुस गई है. ओके शाजिया आगे. It was just like, because you know they have direction wise, execution wise, they've been really good. हमने इतनी चीजें पॉइंट करी हैं कि वो दूसरी तरफ जा रहे हैं कॉरिडोर में, इस तरफ पीछे से दिखा रहे हैं जब वो नीचे बैठे हुए, बहुत सारी सीन्स उनके. सो दिस वाज जस्ट टेकिंग इट अ लिटिल टू फार. चलिए ठीक है, आपने एक्सपेरिमेंट किया, नहीं काम किया, अगली दफा मत करिएगा. दैट्स ऑल, है ना. मैं हमेशा कहती हूँ मुझे लगता है पाकिस्तानी डायरेक्टर्स के साथ कोई वबा है, कोई एक वायरस है जो आई एम सॉरी टू से ह्यूज अपॉलॉजीज, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना ये जो जितनी डायरेक्टर्स जो टीम है, क्रिएटिव टीम, या इनको ना जाके वो वायरस हो जाता है. क्योंकि अच्छे भले चल रहे होते हैं, अच्छे भले चल रहे होते हैं, फिर एकदम से कुछ चीजें होती हैं यू लाइक. एनी राइटर्स भी शायद इसमें शामिल है. हाँ राइटर्स डायरेक्टर सबको बोलूंगी. आई एम लाइक कि क्या हो रहा है. जैसे हब्स को आप देखें, इतना अच्छा चल रहा है, इतना रिफ्रेशिंग है. आयशा और बासित के कैरेक्टर्स इतने इंटरेस्टिंग हैं. जोया इज वेरी कॉम्प्लेक्स, यू नो. बानो के अपने. अब एकदम से मुझे लगा मैं स्टार प्लस का कुछ पाकिस्तानी वर्जन देख रही हूँ कि आपने जोया के ऊपर फॉल्स प्रेगनेंसी भी दिखा दी. आई वाज लाइक लिटरली व्हाट, यू कुडंट कम अप विद एनीथिंग बेटर रियली. एंड देन उसके बाद पहले बासित को शक था आयशा पे. अब आयशा जो है वो सोहा के बारे में सोच रही है कि क्या है, और सोहा जो है वो पूरी वैम्प बन के. बस इतना सही बताया उसने तुम्हें, और कुछ नहीं बताया. भाई तुम्हारा क्या मसला है? उसने जो भी बताया अपनी बीवी को, तुमने कौन सा उसको रख लिया था उस वक्त जब वो तुम्हारे से मंगेतर था तुम्हारा. सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस कि एक ड्रामा जो इतना सेंसिबली चल रहा होता है, it starts doing things like this which do not make sense, which are complete drag.
and it's sad to see this. So, as far as Soha is concerned, Soha is exactly very predictable, exactly what we thought would happen. From the first episode, we knew this is going to happen. ठीक है, तो उसको तो मैंने साइड पे कर दिया कि ये तो होना था. बासित का भी आई विल से कि आदमी बहुत दफा कोशिश करते हैं कि बीवी को पूरी कहानी ना सुनाए, जितनी इंफॉर्मेशन देनी है बस उतनी दो, उससे आगे पीछे देने की जरूरत नहीं है अनलेस के कोई. लेकिन मुझे प्रॉब्लम आयशा से है. पहले यू से ओ इट्स ओके, वी विल नॉट गो फॉर द डिनर, इट्स फाइन, वी विल स्टे एट होम. फिर नाराज होना. मैं कहूंगी चलो ठीक है, a lot of women do that also. वो कहती हैं that we are okay, but they're not okay with it. ठीक है, वो भी सही है. लेकिन फिर आप जाके टेबल पे से उठ रही हैं और मूड ऑफ दिखा रही हैं in front of the guest, जबकि एक्चुअली तो आपने ही कहा था कि भाई तुम यहीं रुक जाओ, हम नहीं जाएंगे डिनर पे. तो वो बासित को अलग से बाद में मूड दिखा थोड़ी. तो मतलब इट वाज वेरी बचकाना ऑफ आयशा टू डू दैट. मुझे अफसोस इस बात का शाजिया, जो जो हमने रिव्यू में भी लिखा था, और मैं आई वाज गोना कम टू इट, ये तुमने स्टार्ट किया. तो आयशा का कैरेक्टर ऐसा नहीं था. मुझे इस बार की किस्त में आयशा के कैरेक्टर के साथ मेजर इशू था, बिकॉज आयशा का कैरेक्टर एक बड़ा सेंसिबल, एक बड़ा अपलिफ्टिंग एक लड़की है, जिसकी एम्बिशन है, जो पढ़ाई करना चाहती है, जिसको मेडल मिला हुआ है, जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, जो मेच्योरली चीजों को करती है. आपने उसके कैरेक्टर का सत्यानाश कर दिया इस एपिसोड में, ये दिखा के. ये वो क्या बच्चों की तरह रूठ के जा रही है? नो, दिस इज नॉट आयशा. आयशा ने अपनी माँ के साथ बर्दाश्त किया हुआ है. जब बानो और जोया नहीं बर्दाश्त करती थी, आयशा उसको बर्दाश्त करती थी. तो वो लड़की इस तरह हैंडल करेगी सिचुएशन को. बाद में जाके वो बासित को जो भी बोलती, जो उसकी माँ को के साथ इतने अच्छे से जो बासित को समझाती थी, व्हाई वुड शी रिएक्ट लाइक दिस? जब आपको बात पूरी पता भी नहीं है. सोहा ने ये कहा कि क्या उसने और कुछ नहीं बताया? That doesn't mean that there was anything else. Maybe सोहा के साथ बासित ने कोई दोस्ती का बहुत रिश्ता हो, सोहा का एक्सीडेंट हुआ जो बासित ने बचा, एनीथिंग. व्हाई वुड यू थिंक नेगेटिवली? सो दैट वाज कंप्लीटली अगेंस्ट आयशा's कैरेक्टर फॉर मी टू शो दिस इमेच्योर. वो भी बच्चों की तरह मैं रूठ के जा रही हूँ. तो राबिया, द अदर थिंग इज कि हम हमेशा कहते हैं कि जब लड़कियों का कोई भी कनेक्शन या कोई भी रिश्ता शादी से पहले हुआ होता है तो हम उसको डिस्रिगार्ड करें. तो यहाँ अगर हम आयशा को सिचुएशन में रखें, ऑफ कोर्स आयशा शुड गो एंड टॉक टू बासित, बिकॉज क्योंकि सोहा बार बार घर में आ रही है एंड फिर अभी भी कनेक्शन जारी रखना उसके साथ वुड बी अ प्रॉब्लम. एंड फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग ऑन एंड देन डिसाइड ऑन द लाइंस. ठीक है, अगर तुम्हें सोहा से मिलना है काम के लिए, तुम काम के लिए सिर्फ मिलो एंड उसके बाद डू नॉट हैव अ सोशल कनेक्शन विद हर, या जहां भी उसको लाइन ड्रॉ करनी है वो करे. बट दैट इज अ प्रॉब्लम, द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू इज जीरो. But I feel there is no reason for her to feel this way, because अभी तो बासित ने उससे मोहब्बत का इजहार किया है. बासित उसका इतना ख्याल रखता है, उसको लंच पे लेके जा रहा है. वो या तो फिर तुम कह रही हो कि बासित इज टू फेस्ड, यू डू नॉट बिलीव हिम. सो आई एम सॉरी, दिस इज badly executed, both the characters. It does not make sense. It should be clear. गलतफहमी भी क्रिएट करनी है तो उसको लॉजिकली तो गलतफहमी को क्रिएट करें ना आप. फिर दूसरी बात ये है, मुझे आयशा के कैरेक्टर से, वो लड़की जो पढ़ती थी, वो it's difficult to see Aisha's character for me. It is sad because वो बैठी भी बस चाय का कप पी रही है, वो aimlessly जिंदगी में गुजार रही है. And I'm not saying कि अगर कोई औरत घर पे बैठी है और वो कुछ कर नहीं रही है और वो चाय पी रही है, वो देर से उठ रही है, तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ और आई एम जजिंग. नो, आई एम नॉट जजिंग एनी ऑफ दोज पीपल. ये आपकी चॉइस है, आप जो भी करें. लेकिन आयशा का कैरेक्टर ऐसा नहीं था. आयशा का कैरेक्टर वो था जो उसको दुख था जब उसकी माँ ने गोल्ड मेडल बेच दिया. उसका ख्वाब था कि वो कुछ करेगी. अब उसके पास अपॉर्चुनिटी है. बासित ने उसको ऑफर भी किया कि हम दोनों मिलकर कुछ करते हैं. वो देर तक सो रही है, वो चाय पी रही है, वो उसकी हेल्पर लेकर आ रही है. It just does not make sense for me. I want to see more character from Aisha, more empowerment, more strength from Aisha, because Aisha was not like that. So it is very irritating to see Aisha being so aimless. So मतलब आयशा को कोई दिमाग ही नहीं है. आयशा कुछ है ही नहीं. आयशा बस पड़ी हुई है. बासित उठा के यहाँ रखेगा तो वो कुछ कर देती है. बासित पकड़ के हाथ लेकर आता है तो वो मान जाती है. अब बासित ने उनको टिकट दिए. वो क्या रिएक्शन था आयशा का? वो ओके, ऑलराइट. आपने आयशा की रांट खत्म कर ली, गुस्सा निकाल दिया, भड़ास निकाल दिया आयशा पे. बस आयशा से मुझे बहुत उम्मीद थी. मुझे आयशा का कैरेक्टर इतना अच्छा लगता, मुझे लगता था ये वो कैरेक्टर है जिसको हम ओवर प्ले नहीं कर रहे. क्योंकि जब हम एम्पावर्ड वुमेन दिखाते हैं, जैसे सोहा के उसमें किया था, तो हम उनको इतना रूथलेस और इतना एम्बिशियस और इतना फीलिंगलेस दिखा देते हैं, जैसे आयशा ने, जैसे सोहा ने किया, जो भी किया. आयशा का कैरेक्टर मुझे लगता था कि इसमें स्ट्रेंथ है, ये कुछ करना चाहती है, लेकिन देखो ये अपनी माँ के साथ कितने तहम्मुल से पेश आती है. शी इज मोर रियलिस्टिक. शी इज नॉट गोइंग ओवरबोर्ड. शी इज नॉट being बदतमीज, but she's still patiently and with
courage and determination, she's following what she wants to do. वो बासित की बदतमीजी भी बर्दाश्त कर रही थी शादी से पहले भी चुप करके, लेकिन अपनी लाइन ड्रॉ करती थी। अब एकदम से उस कैरेक्टर को एक बिल्कुल ही माइंडलेस, एमलेस, विदाउट एनी थॉट प्रोसेस, सोहा ने बोला तो इधर चली गई, किसी ने बोला तो यूं चली गई, वो देख के ना आपको पता चल रहा है बानो आपसे झूठ बोल रही है। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, व्हाई? ओके, ठीक है, ऑल राइट। देयर टू थिंग्स यू डिस्कस। नंबर वन, कि आयशा के जो रिएक्शंस हैं लोगों के अगेंस्ट, वो सही नहीं है, विच आई टोटली एग्री विथ यू, के बासित के साथ, सोहा के साथ, बानो के साथ, शी नीड्स टू बी मोर proactive in what she's doing. They totally with you. And Aisha enjoying the honeymoon moment, the thought of going on honeymoon, enjoying her cup of tea and doing nothing, for me is like Aisha is taking a break from all the intensity that has happened. वो अभी अपने शौहर के घर में वापस आई है, अभी तो उसको भी नहीं पता शादी कंटिन्यू होगी कि नहीं. So I think this story is not about Aisha being empowered later or Aisha continuing with her studies. It is about their relationship coming together, and that's where the problem is. I expect all those things from Aisha that she will probably do. If she doesn't do them, if she has children, then she will direct that energy towards her children, which a lot of women do, and they don't work. I think that we are jumping the gun here. Aisha वो सब करेगी, and हम बहुत ज्यादा expect कर रहे हैं Aisha से at this point, as far as her own self is concerned. जो हमारी उनकी relations के साथ expectation है वो बिल्कुल ठीक है, because Aisha की बहुत बेवकूफी के responses आने सोहा के लिए और बानो के लिए और बासित के आप लिए. आयशा को That's लड़की दिखाते तो फिर आप आयशा को वो लड़की नहीं दिखाते जो एजुकेशन को आगे परसू करना चाहती थी, जो करियर बनाना चाहती थी। करेगी, हनीमून से आ जाए वापस, she'll do it. से उसको तो पता ही नहीं था हनीमून का, वो उससे पहले कुछ बात करती के बासित आप, एंड यू डोंट हैव टू शो एक्सट्रीम थिंग्स या बहुत एक्टिव, आप थोड़ा सा डालते वो बोलती कि मैं अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहती हूँ। वो लड़की अपने गोल्ड मेडल पे इतना खुश थी, उसको दुख था उसकी माँ। फॉर मी दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिट चेंज इन हर पर्सनालिटी। आप फिर ऐसा दिखाते नहीं, आप उसको एक नॉर्मल लड़की दिखाते जो बस पढ़ रही है, बस उसको अपना काम करना है। शी इज नॉट दैट about her career and making something out of her life and all that, फिर आप वो नहीं दिखाते शुरू की कुछ episodes में। I would have been just fine with it. So मुझे आयशा से बड़ी उम्मीद थी, so मेरी वो उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं आयशा के साथ। I think हो जाएंगी. I think she will. I mean, the Aisha. Okay, I don't know होंगी कि नहीं होंगी, but I would expect कि वो आगे जाके करेगी. अभी she's on a little bit of a mini break right now. This is what I feel. But अब जोया की प्रेगनेंसी का, अच्छा वो तलाल का क्या चक्कर है भाई? वो उसकी बीवी तो छोड़ के चली गई। Where is the story going? अच्छा, so I'm not understanding कि तलाल की बीवी का जो कैरेक्टर है उन्होंने इतना नेगेटिव दिखाया है कि आपको सिर्फ कहानी को एक तरफ लेके जाना है, तो आपने इस कैरेक्टर को डाल दिया है बीच में और आप उसको नेगेटिव 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 दिखाए जा रहे हैं. देयर इज नो लाइक, क्यों कोई बैकग्राउंड नहीं है उस लड़की का कि वो क्यों बिला वजह इतनी ज्यादा टॉक्सिक हो रही है, क्यों उसको क्या अग्रीड कि ठीक है उसको नौकरानी नहीं रखने दे रहे हैं, उसकी अम्मा बहुत ज्यादा टॉक्सिक हुई हुई है कि मैं ख्याल रखूंगी XYZ. आई टोटली अंडरस्टैंड दैट्स रॉन्ग, बट ना तलाल का कोई बैकग्राउंड आ रहा है कि वो क्यों इतना डिफिकल्ट हो रहा है अपनी बीवी के साथ, ना उस लड़की का बैकग्राउंड आ रहा है. सो इट्स स्पॉइलिंग द एंटायर स्टोरी फॉर मी. इट्स अ वेरी फोर्स्ड सिचुएशन जहां आपको पता है कि ओ आपने इस पॉइंट तक पहुंचाना है कि तलाल बीवी को और बच्चे को छोड़ दे या कुछ हो, तो बस उस पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं आप जबरदस्ती। आपको पता है इट्स नॉट फीलिंग नेचुरल, क्योंकि एज यू सेड लॉजिक नहीं बन रही है उन सब चीजों की। वो क्यों नहीं रख सकती भाई नौकरानी अपने अपने बच्ची के हेल्प के लिए? क्यों नहीं रख सकती? अगर ठीक है आपको नहीं चाहते कि वो बच्चे को छोड़ के जाए, तो घर के काम के लिए नौकरानी रख लेना, बच्चे को अगर वो देख रही है। तो देयर आर थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द ड्रामा नाउ एट दिस स्टेज, विच दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि समझ नहीं आती कि ड्रामा जो इतना अच्छा चल रहा होता है, इतने अच्छे कैरेक्टर्स बिल्टअप हो रहे होते हैं, उसका पूरा ग्राफ जो होता है वो नीचे चला जाता है, वो गिर जाता है। सो लेट्स सी, बट वी आर क्यूरियस टू फाइंड आउट कि आगे जोया के साथ क्या होगा, बानो के साथ क्या होगा, आयशा के साथ क्या होगा इन द नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स। I just wanted to point out, जब वो जोया कुत्सिया को घर लेकर आती हैं और वो कहती हैं कि वो प्रेग्नेंट है, एक तो जोया का क्या सरप्राइज, और ऊपर से जब उसके कमरे में से वो पूरा पोटला चादर के अंदर छुपा के लेके जा रही, दैट वाज रियली हिलेरियस. बट देन आई थॉट ओनली कुत्सिया कैन डू दिस. उन्होंने कुत्सिया का कैरेक्टर ऐसा दिखाया, only she could have said my daughter's pregnant, only she could have taken on that jewelry and gotten back. तो वो मुझे कुछ अम्यूजिंग भी लग रहा था एंड बिल्कुल ऑन पॉइंट कैरेक्टर भी लग रहा था कि she can do that. Yeah, जी, and क्रिकेट that's पहुंच गया पाकिस्तान, आपने कुछ कहना है फाइनल्स में? हाँ, मुझे ये कहना है कि पूरा पाकिस्तान बड़ा खुश है और संडे को बहुत सारे लोगों के, तुम लोगों का क्या, तुम लोग का दोपहर का होगा, इट्स अ परफेक्ट टाइम टू हैव अ संडे ब्रंच.
एंड वॉच द मैच। हमारा अर्ली मॉर्निंग होगा, सो बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। मेरी बस रिक्वेस्ट है, अगर अगर पाकिस्तान नहीं जीता तो प्लीज प्लीज थोड़ा सा हौला हाथ रखिएगा, थोड़ा सा प्यार से वो आप बात कीजिएगा, क्योंकि हार जीत खेल का हिस्सा है। हाँ, ज्यादा गुस्सा जब आएगा अगर हमें लगे कि पाकिस्तान ने कोशिश ही नहीं करी। वी वांट टू सी अ फाइटिंग मैच, वी वांट टू सी अ गुड मैच, एंड इंशाल्लाह आगे देखेंगे। एंजॉय द मीम्स टिल संडे, बड़े मजे की मीम्स आ रही हैं आजकल। ठीक है जी, आप सब अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट्स जरूर करते रहें कि आपको ड्रामा कब कैसा लगा एंड व्हाट डिड यू थिंक अबाउट आवर कमेंट्स एंड आवर रिव्यू। टेक केयर, अल्लाह खुदा हाफ़िज़। हाफ़िज़।